Prince also I took lot of time. For people, हम एक कपल थे बट इंटरनली आई न्यू मैंने कहा नहीं यार ये तो बिल्कुल भी नहीं है. रोडीज एंड स्प्लिट्स विला में रोज़ इनकी गर्लफ्रेंड्स चेंज होती हैं. I was like, The pressure of the society or just you wanting it or pressure it of was society was not there. I took pressure from a doctor who guided me wrong way. She said you can't become a mother. I was really desperate to be a mom. but do you feel that you were worth more? Everybody expected that कि अभी तो ये बंदी बहुत काम करेगी. What happened actually? Successful life, big, that show was hit. Everybody was like, no, Yuvika, autograph. And after that, there was a phase when I didn't have work. Christmas का time है and I'm saying, God, मैंने सारा काम गवा दिया, अब तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है. And guess what? I'm meeting Farah Khan. She said, फिल्म करोगी शाहरुख के साथ. आप कैसे डिसाइड करते हो कि आप अपने बच्चे पे क्या लगा? What goes in your child's skin? Her skin is very sensitive, honestly speaking. Welcome to the Debina Banerjee show. People feel like they already know her. But I have always felt जो दिखता है वो पूरा नहीं होता. Because when I look at her journey, it does not feel like one straight line. It feels like different phases of life. Actor, reality shows, stepping back, coming back, and now motherhood. So today we will not talk about the image. We will talk about her. Yuvika Chaudhary. Welcome to the Devina Banerjee show, Yuvika. Thank you so much. And Finally you came. Finally, and congratulations, you're doing so well. So happy to see you. A mother who's working hard and multiple work and so amazingly you're handling. वाओ, शुरुआत में मेरी तारीफ हो गई. अब आपसे सुनेंगे सब आपकी बातें. हमें ये जानना है कि हमें ऐसा लगता है कि हम युविका को जानते हैं बिकॉज जब हम बहुत टाइम से किसी को देख रहे होते हैं स्क्रीन पे तो ऐसा लगता है हम बहुत अच्छे से जानते हैं. बट आई वांट टू नो द युविका who is at 7 a.m. with the baby in one hand with a cup of chai in the other. Yeah. What are you like? At one point of time, I'll be handling my baby. I'll be doing my housework, handling my husband, handling my house staff, telling them what to do. And whenever Prince is at home and he's never alone, we have always people around us and guests, and not just 1, 2, 3, 4 guests. So my life is this. And yes, when Prince is not there, then my life is a little easy, not that easy. But yes, people are less. Then my management is my work, baby, and house. And but I make sure जब से clean हुई है that I should focus on myself first. I start my day with myself, finish my exercise, and then I plan my day. And I'm charged for the day. So that's how this big change I've done in my life, and it's beautiful. शाम तक एनर्जी रहती है मेरे अंदर फिर. एक्चुअली मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मदरहुड के बाद लोग बेबी के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं. बट डू यू थिंक दैट मदरहुड के बाद एक फॉर अस फॉर द न्यू एज मॉम्स एक नई फीलिंग आई है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट इफ़ यू लव द बेबी? It is deliberate effort. Basically, I have to make extra effort and tell myself, because once you're a mother, your brain is like a mother brain. It never sleeps, it never rests, just it's always working. So सोते वक्त भी जब बच्चा सोता है उठता है, I don't think so मैंने कभी डीप स्लीप ली है जब से मैं माँ बनी हूँ. So I just don't remember. But that happiness that I have, my baby in my life, that beautiful soul which I've wished for since very long and I struggled so much. So I'm always every day grateful. And in this life I just say one thing, that just be grateful. We are healthy, happy family, and we have to maintain that. So एक टाइम था पहले अब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अभी क्या अच्छी हेल्दी लाइफ चाहिए एंड फॉर आवर फैमिली. सो आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग नाउ. येस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मल्टीपल थिंग्स बेबी के साथ. माइंड काम पे रहते हुए भी बैक ऑफ द माइंड रहता है कि व्हाट इज़ शी डूइंग, क्या चीज़, क्या अभी ये खिलाया, क्या प्रॉपर आई एम नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन नैनी. So that is why thank you so much God, मेरी family is around me, and of course my mom is helping me out when I'm here. She's with my mom right now, so I'm not worried. So एक relaxed mind रहता है.
हाउ वंडरफुल. विल कम टू द बेबी फेज. थोड़ा सा करियर की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को अगर युविका बैठी है तो उनसे वो भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट हु इज़ प्रिटेंडिंग टू बी एन एक्सट्रोवर्ट. इज इट ट्रू और इज इट द अदर वे अराउंड? No, I'm not introvert. I am someone. There's a huge change in me now after becoming mother. I like my comfort. Once I'm with people, there's a time when I like to be in my zone where I recharge myself. And it's not introvert. I'm very when I'm around people happy, but I need to be comfortable. You know. But this new change in me where if I'm standing alone, if I'm with people, I enjoy it. I never used to enjoy my company. Now I enjoy myself. मैं खुद कभी इंजॉय नहीं करती थी बिकॉज आई वॉज ऑलवेज हसलिंग. हसल तो आज भी करती हूँ, बल्कि ज़्यादा करती हूँ. लेकिन मैंने ज़िंदगी में ग्रेटफुल होना पहले बोलती थी बट फील नहीं करती थी. टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट जो मुझे लाइफ में मिल रहा है. तो उस चीज़ का मैं एहसास करती हूँ. पहले सिर्फ भागती रहती थी. आई डोंट नो फॉर वॉट. आई हैव नो आइडिया फॉर वॉट. बट देख ठहराव जो भी आया है आई अप्रिशिएट. बट येस, आई एम समवन हु लाइक्स टू बी इन हर ओन स्पेस टू रिचार्ज माई सेल्फ. दैट्स इट. ताकि मैं आराम से सोच पाऊँ, अपने आप को टाइम दे पाऊँ. फॉर दैट. अदरवाइज आई एम नॉट इंट्रोवर्ट. आई एम जस्ट प्रिटी outgoing, and people get surprised when they see me in party and dancing. अरे यार तुम्हारा ये साइड तो मैंने देखा ही नहीं था, टेक्नो पे डांस कर रहे हो and all that. मैंने कहा yeah, you can enjoy your life, why not? At this age, at this moment in my life, I'm trying to do everything. Live my dream, trying to be best mother. I can't be best in everything, but I want to live my life where I don't want to regret कि मैंने ये नहीं किया. So you feel that हम जिस तरीके से हमारा कंडक्ट रखेंगे, इन द सेंस हम काम करेंगे, हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो हमारा बच्चा कहीं ना कहीं वो देख के सीखेगा. 100%. आई थिंक आप बच्चे को नहीं सिखाते हो, बच्चा आपको सिखाता है. एंड इफ़ आई एम नॉट अ मदर, आई एम नॉट दैट फिनिकी मदर जो ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसा करो वैसा करो. आई लेट हर बी एंड सी हाउ शी रिएक्ट्स, एंड दैट इज़ द ब्यूटी. आई सी दैट ओ माई गॉड, ये तो मैंने नहीं सिखाया, ये कहाँ से आया है. सो एवरी डे आई एम लर्निंग फ्रॉम हर बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ सोल. कुछ चीज़ें वो लेके आई है अपने साथ में, एंड मैं उसको इतना परफेक्ट नहीं करना चाहती कि वो चीज़ें जो अपने अंदर से नेचुरली निकाले वो नज़र ही ना आए मुझे. सो दैट थिंग आई एम इन्जॉइंग. बहुत खूबसूरती से अपनी अंदर की चीज़ें दिखाती है. शी इज़ हर सेल्फ एंड चर्पी, रनिंग अराउंड, वट एवर शी फील्स शी जस्ट रिएक्ट्स. सो आई एम इन्जॉइंग दैट फेज. आई एम लर्निंग टू बी अ मदर. शी इज़ टीचिंग मी दैट. आई कैन सी अ लॉट ऑफ चेंज इन यू. मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम सीइंग अ न्यू एंड इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज कहीं ना कहीं साथ में बड़े हुए हैं ऐसा लगता है. सो यू स्टार्टेड, मतलब जितना मुझे पता है मैं वहाँ से पूछ रही हूँ. यू स्टार्टेड योर करियर विद अ रियलिटी शो और यू स्टार्टेड विद टीवी फर्स्ट? रियलिटी शो. इंडियाज इट वाज सिनेस्टार की कुछ. हाँ, सिनेस्टार फर्स्ट रियलिटी शो जो बहुत बड़ा हिट हुआ था. इट वाज ह्यूज, बिग सक्सेसफुल शो. नाइस. फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माय लाइफ. आई नो. आई मीन आफ्टर बिफोर, मतलब उससे पहले कि आप मुंबई से ही बिलोंग करती थी? I और was in Delhi. I shifted to Delhi immediately, basically, to do my fashion designing. So बहाना था basically, मुझे बॉम्बे आना था. So I was like, मुझे एयर होस्टेस बनना है. पेरेंट्स ने चलो ठीक है हम वहाँ लेके चलते हैं, ट्राई कराते हैं, इंटरव्यू दिलाते हैं. आई पास्ड देयर, क्लियर हो गया सब कुछ. मैंने कहा मुझे ये नहीं करना है, क्या करना है, फैशन डिज़ाइनिंग. सो आई डिड फैशन डिज़ाइनिंग फ्रॉम दिल्ली. शुरू किया ही था. दैन इमीडिएटली पीपल फ्रॉम ZTV एंड एकता कपूर की टीम आई हुई थी वहाँ पे MTV के शो के लिए. सो फर्स्ट ZTV पीपल अप्रोच्ड मी. दे सॉ मी ऑन वेयर आई वाज इन साउथ एक्स स्ट्रीट, एंड देन दे सॉ मी लाइक हमें आपको कास्ट करना है और हम ऐसे ऐसे शो बना रहे हैं. मैंने कहा रियली, प्लीज़ स्पीक टू माई फादर एंड कन्विंस हिम, एंड दिस इज़ हिज मोबाइल नंबर, एंड प्लीज़ उनको ना ऐसे ऐसे कन्विंस करना. इफ ही सेज येस देन आई विल कम 100%. एंड देन I spotted same thing, MTV के लिए. These people were casting for the show, and they said I was in the crowd, and they said, oh, there's one girl who's wearing this outfit, and I want you to come on the stage, and there's a mobile for you as a gift, and then we are giving you chance to be in the show, and these are the lines, and you have to
कम विद अस, एक छोटा सा ऑडिशन, लुक टेस्ट बेसिकली देना है. So, but I was approached first by ZTV, so with our loyalty. So the team convinced my father, and somehow, and that's how I came, and there's no looking back. Superb. And immediately after that was the Om Shanti Om break. No, no, no. After that, I had seen my successful life, big, that show was hit. Everybody was like, no, Yuvika, autograph, and autograph. And after that, there was a phase when I didn't have work. So No, but TV happened first, TV or happened. No, no. you did a TV I serial had also? to stay to be in Bombay because my parents were saying show ho gaya now, ghar chalo. So I was getting offers for movies and for this show, but immediately for movies I didn't know anything, zero idea. So this show happened, and of course TV सब देखते हैं, तो मुझे लगा कि मैं फटाक से हाँ बोल देती हूँ, जो कुछ भी आ रहा है सामने, शो आ रहा है ना, जी पे शो है, ऑफ कोर्स ऑथेंटिक है. सो आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर दैट, एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मैं तो ऑलरेडी काम कर रही हूँ, मैं कैसे आऊँगी बॉम्बे छोड़ के. सो फॉर मी इट वॉज अ मोर ऑफ अ प्रेशर कि मुझे छोड़ना पड़ेगा बॉम्बे, अभी रियलिटी करा दिया, अब क्या, तो अभी दोबारा एक और बहाना चाहिए. सो आई ग्रैब दैट शो टू बी इन बॉम्बे. And that was a big hit. Yeah, it was a big hit. Yeah, that was the reason. I did that show for some time, and then I left. I was like, nahi, I'm not enjoying this journey. I think I should do something else. Then I started doing ads, giving auditions. Again, I had in my life there was phases when I was doing very well, but before that, a lot of struggle. It was not easy. Came to Bombay through reality show, became very popular, very very popular, known, and then there was a phase I had no work at all. तो दैट वॉज अनदर स्ट्रगल कि अभी सब जानते हैं लेकिन आपके पास काम नहीं है, तो वो ज़िंदगी का अलग स्ट्रगल होता है. निकाला वो स्ट्रगल भी, निकाला, ऑडिशंस दिए, इकट्ठा एक बैग में सारा सामान पैक करके लेके जाती थी, सुबह से शाम तक ऑडिशन देना. बट थैंकफुली माई फैमिली सपोर्ट वॉज सो बिग, ह्यूज. दैट इज़ द रीज़न कि मैं यहाँ पे लगी रही. सो मेरा एक एटीट्यूड होता था कि अगर मैं दिन में 10 ऑडिशन दे के आती हूँ तो मैं आके भूल जाती थी कि मैंने कुछ किया भी है. नेक्स्ट क्या कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है. तो वन फाइनल डे आफ्टर पता नहीं 300-400 ऑडिशन, पता कितने ऑडिशंस दिए हैं भाई, बहुत ज़्यादा. वन फाइनल डे आई गॉट अ कॉल फॉर एन एड दैट वाज फॉर थम्स अप, एंड देन इट वाज सेकंड एड, some brand was there, दृष्टि धामी was there. दैट वाज माई फर्स्ट एड. बहुत सारे ऑडिशन देने के बाद महीने 3 महीने बाद शायद मुझे एक वो चांस मिला, फर्स्ट एड, एंड देन आई started shooting, and after that there was no looking back. फिर मैंने काफ़ी ads किए हैं, but breaking was Thumbs Up with Kunal Kapoor I did. From that ad I got Om Shanti Om. Yeah, because Yeah. that was huge. Huge, yeah. So how did you get Om Shanti Om? Again, ज़िंदगी का वो फेज़ जहाँ पे मैं कोई काम नहीं है, बहुत अच्छी फिल्मों को मना कर चुकी हूँ. मना इसलिए किया है क्योंकि नहीं, मुझे ये रोल नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे किसिंग सीन नहीं करने, बहुत सारी चीज़ें होती थी मेरे साथ. एंड आई एम लाइक, भाई ऐसे तो मुझे कोई काम नहीं देगा. देयर इज़ नो गॉड फादर फॉर मी, देयर इज़ नो गाइडेंस फॉर मी. तुम अकेले हो अपनी फैमिली के साथ, एंड तुम्हें खुद ही करनी है चीज़ें. अब कैसे करो, तो जितनी अकल होती थी चीज़ों को हाँ बोलती थी, जो चीज़ ठीक लगती थी, नहीं समझ में आती थी मना कर देती थी. सो देयर वर गुड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो जो मैंने, बिकॉज ऑफ नॉलेज, आई डिडंट हैव नॉलेज. Can we know कि ऐसा? देयर वाज मुन्ना भाई पार्ट 2. मैंने हर इंटरव्यूज़ में बोला मुन्ना भाई पार्ट 2 आई वाज डूइंग, एंड देन गेव ऑडिशंस. बहुत राजू जी ने बहुत समझाया कि नहीं डोंट डू दैट. आई थिंक ही अंडरस्टूड दैट आई डोंट हैव गाइडेंस. मैं अब जिस हवा में चल रही हूँ, लाइफ इज़ टू डिफरेंट हियर, इतनी आसान नहीं है. बट एनीवेज आई refused few films, and after that चर्च में बैठी हुई हूँ. आई एम क्राइंग इन द चर्च. क्रिसमस का टाइम है, एंड आई एम सेइंग गॉड, मैंने सारा काम गवा दिया, अब तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ. एंड आई गॉट अ कॉल फॉर अ मीटिंग, एंड गेस व्हाट, आई एम मीटिंग फराह खान. आई स्ट्रेट वेंट टू फराह मैम्स हाउस. जैसे फ़ोन आया मैं उनके पास जाके बैठी. आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट. शी सेड, फिल्म करोगी शाहरुख के साथ. दैट वाज वन डायलॉग, एंड आई सेड आफ्टर दैट 100%
कब शूट है, आई डिडंट आस्क एनीथिंग बिकॉज मैंने इतने सवाल जवाब पुराने बाकी जगह किए हुए थे कि आई वाज लाइक नहीं, यहाँ आई थिंक गॉड हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई शुड नॉट लीव. सो आई जस्ट सेड येस. डू यू फील आज की यू नो इट वाज बिग और यू न्यू इट वाज बिग? मतलब आज वो ज़्यादा बड़ा लगता है कि कल भी यू हैड दैट? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिडंट नो. मैं सिर्फ चलते ही जा रही थी. सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र होता है ना, आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि आप किस मोमेंट में घुस रहे हो, आपका दूसरा मोमेंट कितना बड़ा है. आई डिडंट हैव. आई वाज वर्किंग हार्ड, हसलिंग, एंड जो सामने आ रहा है. बट येस, व्हेन आई वाज शूटिंग आई रियलाइज दैट दिस इज़ अ बिग थिंग. बट आई वाज सो नर्वस कि मैंने इन्जॉय ही नहीं किया वो मोमेंट. आई यूज्ड टू बी सो नर्वस, you know. Shahrukh used to talk, you know, about set, and everybody used to sit and chill. I used to be there, but I was not fully there. एक नर्वसनेस होती ना, यू डोंट रियलाइज. घर वापस आती थी, सब बोलते यू नो यू आर वर्किंग विद शाहरुख खान, यू नो दिस. आई सेड या, यू नो, एक एहसास करते हो आप, तो ग्रेटफुल. वो वाला एहसास आज होता है? 100%. Every moment I'm like, oh God, this film has changed my life. People remember me from that film. And I recently met Farah ma'am. I tell her always, मैंने कहा thank you so much. आपने मुझे, I don't know, you've given me the best film. And she told me that time, she's like, be in touch with me and I have another project for you. I was not in touch with her. I used to be so nervous and scared of her कि मैंने ये चीज़ जब मुझे फ़राह मैम दोबारा मिली तब उन्होंने मुझे बताया. एंड देन आई रियलाइज़ कि ओ माय गॉड, हाउ आई वाज सो स्टूपिड. मैंने इस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया. आई वाज लाइक, आई यूज्ड टू बी सो नर्वस कि मैं अपने नर्वस सिस्टम को ज़्यादा हाई रखती थी शायद. एंड मैंने कहा आई डिडंट रियलाइज़ दिस. शी सेड, मैंने तुम्हें बोला था कि मुझसे टच में रहना, आई विल गिव यू अनदर प्रोजेक्ट एंड यू आर नॉट इन टच. तो मुझे ये लगता था कि इफ़ आई विल बी बिहाइंड हर, शी विल फील कि ये तो चिपक ही गई है बंदी यार, तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है. इन माई माइंड एक्स्ट्रा सोचना होता है ना, कई बार चीज़ें नहीं हो रही कई होती बार और होता है, खुद कि को यार भी इस होता सामने है. वाला क्या सोचेगा. मतलब ऐसा लगता है कि देना होगा तो वो देंगे ज़रूर. या मेरे किटी में था तो आया ही ना. हाँ, एग्जैक्टली. बट हाँ, ये होता है. आई ऑल्सो फील दैट बोलने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज आई समहाउ फील, मतलब टुडे शायद मैं भी नहीं कर पाती हूँ, बट हाइपोथेटिकली आई फील दैट यू नो इफ़ यू आर वर्थ इट यू कैन ऑलवेज टेल. क्योंकि कई बार होता है कि यू जस्ट स्किप द माइंड. मतलब मेरे जहन में भी वो लोग I feel नहीं now, आते I हैं. think this is your opportunity. Chino, this is who I am today. Snatch it. Nobody will come and show you your light. Show your light that here I am. This is me. And this is what I have. Rest all kya hoga? Rejection hoga na? It's okay. So this is me after so many years. Now I make my place. Now I go all out. Now I say ki this is who I am and I want to work with you. Let's just do this. And what I have, I show from my side कि भाई मेरे पास क्या है, where, what we can do together. So, yeah. How wonderful. That's like something to actually learn from, you know. Nothing comes back again and I don't want to regret because I am living my second chance of my life and career, whatever. Not life, but yes, career, touch wood. Where I'm doing whatever I can't say mistake, but I was too naive that time. But now I know what I want, how I want, and living all my moments. But do you feel that, you know, you were worth more? मतलब everybody expected that कि अभी तो ये बंदी बहुत काम करेगी. What happened actually? मतलब Guidance. I didn't have guidance. I had support, but that guidance, where as a mentor somebody can tell you this film is good for you, you should focus there. I didn't have that. So whatever I felt, मैंने वो किया, जो दिल में आया वो किया. So बचपना था, but yes, I feel कि I could do much more. 100%. Even the audience feel. I mean, even I feel. And we all felt at that time because the time that you were doing the other reality show, we were doing another reality show at that time. And when you did the TV, then when you did the film, we were all in the same circle, it felt.
और सबको एक्सपेक्टेशन था कि इसके बाद युविका और अच्छी अच्छी फिल्में करेंगी. Yeah. आई थिंक यू केम इन अ फिल्म विद गोविंदा आफ्टर दैट. Yes. आई थिंक दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड जब इंडस्ट्री में आप हो तो आप मे बी यू कैन गाइड समबडी बेटर नाउ टुडे. 100% गाइडेंस इज़ वेरी बिग थिंग. यू नो, आपको कहाँ क्या करना है, आपकी विजिबिलिटी कितनी कहाँ ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई यूज़ टू सी ऑल दिस थिंग्स, यू नो, मीडिया, एवरीबडी हायर मीडिया, कैसे किसको कितना कहाँ दिखाना है. आप ऑल दीज थिंग्स जो मैं आज मुझे चीज़ें दिखती हैं, आज एवरीबडी नोज ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैज़ बिकम सो ह्यूज कि आज हर नॉलेज रख सकते हो आप. पहले आई डिडंट नो एनीथिंग कि मीडिया भी, everybody is buying media. You know, so it was a different game altogether which I didn't understand. कभी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती थी. तो जब आपका कोई नहीं होता इंडस्ट्री में और आप नए होते हो तो आप सिर्फ ऐसे ही देखते रहते हो ये लोग बात क्या कर रहे हैं. देन आई एम लाइक चलो यार अपना काम करो और घर जाओ. बट इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू नो all everything, you know, from all the game of marketing, you know, presentation and everything. It's just not acting if you want to be there. Then I think Big Boss happened. Yes. And that, do you consider that like another phase of your life? I never thought in my life. Imagine, जब मैं नहीं सोचती हूँ जब चीज़ें बहुत सरप्राइज हो जाती हैं. क्योंकि बिग बॉस अब लोग करने में उतना घबराते नहीं हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे I was saying फेसेस no. को बिग बॉस में लेते हैं. बट यू डिड एट अ टाइम जब ऐसा लगता था बिग बॉस मैं सिर्फ. भी यही बोलती थी. हाँ. मैं बहुत सालों से यही बोल रही थी. एंड देयर वाज अ फेज व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू वेरी डिफरेंट फेज ऑफ माय लाइफ. तो मेरा प्लान था न्यूयॉर्क जाना और स्टडी करना, फिल्म स्टडी करके आऊँ. एंड आई शुड जस्ट एक्टिंग वैक्टिंग थोड़ा सीख के आए और थोड़ा सा पॉलिश करके देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट लाइफ जी के आती हूँ. एंड देन आई विल डू समथिंग हियर. एंड मैंने वीज़ा आ गया. एंड आई एम लाइक चलो ठीक है अब प्लान करते हैं. दिस शो केम ऑल ऑफ अ सडन एंड माई मदर टोल्ड मी दैट गो, यू विल गेट सम चेंज इन लाइफ एंड उसके बाद देन यू कैन ट्रैवल टू न्यूयॉर्क. एंड शी इज़ लाइक इफ़ इन दैट शो बहुत होता है कि somebody likes you or something, don't feel hesitate, you know, enjoy the process, you know, just relax, ज़्यादा सोचना मत. एंड आई एम लाइक मम्मा आपको पता है मैं ऐसी हूँ नहीं. शी इज़ लाइक इवन इफ somebody is praising you, enjoy that. बहुत ज़्यादा सोचती है तो. एंड आई एम लाइक ओके कि शी इज़ सीन कि भाई यू नो you see people liking each other in the show and all that. So she was that much prepared for me and I was like why she's talking to me like this. So she was actually making me feel comfortable. अगर ऐसा कुछ होता है तो you know don't think कि family क्या बोलेगी and all that. हाँ, क्योंकि हम आधे से ज़्यादा अपने आप को रोक के अकड़ के रखते हैं थिंकिंग क्या लोग क्या सोचेंगे. और लोगों में हमारे घर वाले ही सबसे पहले आते हैं कि वो क्या सोचेंगे, हमारी बेटी उधर अंदर जाके क्या कर रही है. वालों से ज़्यादा एक्चुअली लोगों को चिंता में बोलना चाहूँगी, लोगों को चिंता ये रहती है कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे. एंड इसलिए घर वालों की टेंशन ज़्यादा बढ़ जाती है. तो ये जो दुनिया है ना ये रिश्तेदारों से है मोर देन एनीथिंग एल्स. किसी के माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहते हैं. हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अपनी ज़िंदगी जिए उनकी आंखों के सामने. लेकिन वो जो रुकावट होती है ना रिश्तेदारों की और दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, उसमें बहुत लोग पिसके रह जाते हैं और कुछ लोग लड़ लेते हैं दुनिया से अपने बच्चों के लिए. सो समहाउ माई पेरेंट्स आर लाइक जिन्होंने लिटरली मेरी लाइफ बनाने के लिए इग्नोर्ड लॉट ऑफ थिंग. बहुत लोगों को अब तो बहुत ईजी हो गया है. जिस टाइम मैं आई थी उस टाइम तो बहुत मुश्किल से लोग निकलते थे. बोलते थे कि मेरे पेरेंट्स को ये बिगड़ जाएगी, कहाँ भेज रहे हो इंडस्ट्री में, अच्छे लोगों की जगह नहीं है, मत भेजो उसको एंड देखना आप पछताओगे. बहुत सुनना पड़ा था पेरेंट्स को. सो बट आई एम ब्लेस्ड कि इन लोगों मेरे पेरेंट्स ने इतना साथ दिया. एंड नाउ इट्स लाइक वेरी क्लियर. इन दैट टाइम मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ कुछ मत सोचो. सो मैंने बोला मैंने 1 वीक में आ जाऊँगी. जिस तरह का शो है वो मेरे टाइप का शो ही नहीं है तो मैं जा रही हूँ. सो आई वेंट इन द शो एंड ट्रस्ट मी मैं आज भी सोचती हूँ कि मेरी शादी रियलिटी शो में यू नो आई मेट माई गाय एंड लाइफ चेंज्ड. दिस हैपन्स. हाउ डिड दैट हैपन, मतलब कैसे समझ में आया दैट. पता है जब आपकी लाइफ में कुछ हो रहा होता है ना आपको समझ नहीं आता. मैं अब तक की जितनी ज़िंदगी जी है मैं इतना जानती हूँ कि हर चीज़ ऊपर वाला प्लान कर रहा होता है. एंड वी वेस्ट आवर एनर्जी
हम ये करेंगे, उस वक्त हम वो करेंगे. आई थिंक हमारा हर वक्त, हर पल ऊपर वाले ने प्लान किया हुआ है. इट इज़ जस्ट दैट हमारे कर्मा कितने अच्छे हैं उससे चीज़ें ऐड ऑन होती हैं. बट इट वॉज प्लान्ड. आई से भगवान ने प्लान किया था कि मेरा मिलना मेरे लाइफ पार्टनर से एक रियलिटी शो में होगा. एंड मैं बाहर आऊँगी तो लोग हम लोगों को एज अ कपल बनाएंगे प्रविका के नाम से, सारे फैंस. एंड मेरी शादी इमेजिन उसी बंदे से होगी जिससे फर्स्ट मीटिंग में हम दोनों देख के बोलते थे ना, नॉट माई टाइप. हाँ, सो वही मतलब डिड यू फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस ऐसा लगा था कि यही ऐसा No, ही no, लड़का no, मुझे no, चाहिए? no, 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 I was- बिकॉज जितना आप दोनों को देख के लगता है, एकदम लगता है पोल्स अपार्ट. ही इज Yes. वेरी आउट गोइंग, एक्सेप्शनली एक्सट्रोवर्ट, एकदम हू हा. Yeah. एंड यू लुक लाइक अ लिटिल रिजर्व्ड, Yeah, थोड़ा सोच समझ के करने अपनी वाले. लाइफ में रहना, लाइक यू नो हाँ. ही इज़ वेरी रिएक्टिव. जहाँ वो चीज़ों में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है तो मैं वहाँ आराम से, मैं बहुत टाइम लेती हूँ. टाइम इसलिए लेती हूँ क्योंकि टाइम मुझे बहुत क्लैरिटी देता है कि यू नो जो होगा विद टाइम पता चल जाएगा. विद प्रिंस ऑल्सो आई टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर पीपल. हम एक कपल थे बट इंटरनली आई न्यू. सो या फर्स्ट मीटिंग में फ्रॉम हिज साइड ही वॉज लाइक नो, शी इज़ टू स्वीट, नॉट माई काइंड. एंड मेरे लिए मैंने कहा नहीं यार, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. रोडीज़ एंड स्प्लिट्स विला में रोज़ इनकी गर्लफ्रेंड्स चेंज होती हैं. आई वाज लाइक, एंड देन look, I'm married to the guy I never expected to, but he was very very different. वो जो बाहर aggression ये वो he is just opposite. He is very emotional, very vulnerable. आफ्टर दैट आई थिंक मदरहुड केम, बट थोड़े टाइम के बाद. सो वुड यू वांट टू टॉक अबाउट योर wanting to be a mother? This is the one feel. I was really desperate to be a mom. I didn't know this. I have come to know because I was so busy in my journey. I was so busy in this journey कि कैसे होगा IVF, ये वो सारा एक्सपीरियंस जो भी मेरी लाइफ में चल रहा था. तो वन फाइनल डे व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, सो मुझे अपने दोस्तों से पता चला यार थैंक गॉड तुझे बच्चा हो गया. यू वर लाइक डेस्परेट. मैंने कहा रियली? आई वाज लाइक इतना तुझे हमेशा से चाहिए था. बट एक्चुअली आई ऑलवेज वांटेड अ फैमिली, ऑलवेज. एंड समहाउ आई सी माई लाइफ, जो मैं आज ज़िंदगी जी रही हूँ इसका एहसास मुझे बहुत पहले से था. वेयर आई एम टुडे, आई से दिस बिकॉज यहाँ मैं पहुँच गई हूँ. आई यूज़ टू फील, आई यूज़ टू सी माई सेल्फ हियर, एंड आई एम सो सरप्राइज कि मैं बहुत कम एज में आई यूज़ टू से यू नो आई विल बी मैरिड टू एन एक्टर और जो मुझे बहुत प्यार करेगा, एंड देन आई विल हैव बेबी, एंड देन after that I'll start working and I'll do super well in my life. That will be second phase of my life, which is now. I used to say all this thing, तब अक्ल भी नहीं होती थी. I used to literally when I was too young, I was not even married, बच्ची थी. तो I used to say all these things कि मैं बॉम्बे जाऊँगी, मैं एक्टिंग करूँगी, एंड मैं यू नो देन I'll marry a person जो मुझे बहुत प्यार करेगा, and then I'll have family. Then for some time I'll not work, and after that I'll start working, and then I'll do everything whatever I've desired for. नहीं, मुझे मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मुझे नहीं पता वेदर यू वुड वांट टू टॉक अबाउट और नॉट कि देयर वाज अ टाइम दैट यू रियली वांटेड अ बेबी. Yeah. सो वाज इट मतलब द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी और जस्ट यू वांटिंग इट, और Pressure इट of वाज society was not there. I took pressure from a doctor who guided me wrong way. She said you can't become a mother, and she said you have to take embryo from someone else. Sorry, your eggs basically. And I was like, really? That was the thing stuck in my mind, and I felt कि I can't be mother, and where I'm going and how my life is gonna be. And then I told Prince. I was panicking. I was like, now इसका solution क्या हो सकता है? Basically मैं सब छोड़ के मैं इसी चीज़ में लग गई थी because the doctor guided me so wrong. Anyways, then I was like, अब क्या कर सकते हैं? अच्छा embryo डोनर्स भी होते हैं, अच्छा ये भी होता है, ये कैसे करते हैं? तो फॉर मी इट वाज लाइक अ होल न्यू वर्ल्ड टुगेदर. मैंने कभी नहीं लाइफ में सोचा था कि ये दुनिया भी होती है या फिर आपको एग फ्रीज़ कराने होते हैं, कभी नहीं दिमाग में आया. सो व्हेन आई मेट दिस डॉक्टर शी सेड आप ये नहीं आप ऐसे ठीक नहीं हो, आप वैसे ठीक नहीं हो. एंड आई वाज लाइक क्या करें कि ठीक है हम आपको
इंजेक्शंस देंगे, आपकी एग की क्वालिटी वॉट एवर यू हैव वो इंक्रीज़ करेंगे, और नहीं होगा तो फिर हम डोनर से लेंगे. सो इन दैट होल प्रोसेस वो सो हेक्टिक, मेंटली इतना स्ट्रेस वाला था. इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर मी. रिजेक्टेड बाय वन डॉक्टर दैट आई कांट बी मदर, फॉर मी इट वॉज अ ह्यूज थिंग. तो उसके बाद मुझे मेरी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सब ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन एक्चुअली स्पीक टू मोर डॉक्टर्स. हमने नहीं, शी इज़ राइट एंड यू नो सब कुछ तो प्रॉब्लम होगी. मैंने इतना ज़्यादा अपने ऊपर दिमाग में ले लिया कि उसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ. एंड जब एग बेसिकली फ्रीजिंग का टाइम आया, जब निकालते हैं आपके एग्स, दैन डॉक्टर आस्क मी कि आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं एंड देयर इज़ नो गारंटी, अगर आप नॉर्मल सेंस में नहीं आते तो हम गारंटी नहीं लेते हैं. या सो देन आई वाज लाइक, आई गॉट अप फ्रॉम द बेड, आई वाज एडमिटेड. आई वाज लाइक, लेट मी स्पीक टू माय हस्बैंड फर्स्ट. आई टोल्ड हिम, इज़ लाइक, हैव यू गॉन मैड? Baby is not that important, you are important and it's okay, leave it, हमें नहीं कराना. And I'm telling you, and Princess since day one he was like, somehow I feel हमें नेचुरल बच्चा हो जाएगा, तुम कहाँ घुस गई हो एक डॉक्टर के चक्कर में. एंड बिकॉज उसने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म कर दिया था. आई वाज लाइक, नहीं यार कुछ तो प्रॉब्लम है मुझ में, तभी तो ये उसने बोला, ऐसा डॉक्टर क्यों बोलेगा. एंड ही इज़ लाइक, ओके यहाँ से निकलते हैं, यू फर्स्ट लीव, हमें नहीं कराना. द प्रोसेस विच आई हैव टेकन इंजेक्शंस का, दैट इज़ आई हैव कम्प्लीटेड. तो मैंने फ्रीजिंग छोड़ दी, नहीं कराया, बिकॉज दे वांटेड ऑन पेपर वी डोंट टेक गारंटी. एंड आई वाज वीक एंड मेंटली इतना वीक थी, तो मैं बहुत ही पतली हो गई थी. यूजुअली क्या होता है, व्हेन यू टेक इंजेक्शंस तो यू पुट ऑन वेट. आई वाज इन सो मच ऑफ स्ट्रेस कि मैं बहुत पतली होती जा रही थी. लेफ्ट दैट, वेंट टू अनदर डॉक्टर. Then that doctor I met, she saw all my tests and reports and she was like, who told you you can't become mother? You are absolutely fine, you're fabulous, your line in the stomach is so beautiful. I was like, what? As if she has given me new life. So I don't know, I think वो मेरी किस्मत में था, मैं wrong. Then I used to feel every doctor is good, कि हाँ डॉक्टर है तो ठीक ही होगा, मुझे थोड़ी ना नॉलेज है. सो दैट मिथ मेरे अंदर से निकला कि हैविंग फेथ इन यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मोर देन अ डॉक्टर. पहले अपने आप में विश्वास रखो एंड मीट समवन जो आपको इतना कंफर्टेबल बना सके, वेयर एनी टाइम यू कैन स्पीक टू हर. गिव दैट फेथ एंड फेथ इज़ एवरीथिंग. शी गेव मी फेथ एंड दैट वन थिंग व्हेन शी सेड कि युविका तुम माँ बन सकती हो. एंड आई वाज लाइक, आर यू श्योर, आर यू श्योर? शी इज़ लाइक, या. एंड देन my life's changed from there. I didn't know I will be mother 100% or not, but she has given me that faith. And then my journey started with her. Whatever she used to say, I used to do everything. Ye karo, wo karo. Diet changed. And every time when I was with her, she used to make me feel so comfortable कि I was like, तो मुझे यहाँ माँ बन के ही जाना है. And I did my 4 to 5 cycle with her. And one final day when she prepared embryo, and she was going for embryo कि चलो अब मैं सेट करती हूँ embryo, and she was more nervous than me. I was not nervous because she has given me so much of faith and comfort कि मैं कभी भी फ़ोन करती थी, नॉलेज लेती थी, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ऐसे कैसे करना है. She was there. And मैं लेटी हुई हूँ, I still remember that scene. मेरे सामने they had a photo of embryo, how it starts and then they do the process and body के अंदर जाता है, कैसे एम्ब्रियो के अंदर लाइफ आती है एंड देन यू बिकम प्रेग्नेंट. तो मैं शिव मंत्र कर रही थी, ओम नमः शिवाय, एंड देन देख रही हूँ कि मेरी भी जर्नी यहीं से शुरू होगी और मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊँगी. एंड आई एम seeing this thing and telling doctor, and she is doing her process. And when she completed her process and she's like, Yuvika, I just hope अच्छा हो. I'm like, no, I'm pregnant. From now only I'm telling you. And she's like, she was teary, emotional because journey लंबी रही. And I was like, देखना मैं माँ बन के ही निकलूँगी यहाँ से. And that faith, and because of that doctor, she has given me that faith कि you know it is so important कि तुम माँ बन जाओगी. And then God has been kind to us. He gave us beautiful life and then I was pregnant. How beautiful. मतलब मुझे ऐसा लगता है this is such a beautiful thing that an audience, anybody, a woman can hear who is going through this very very tough journey. कि कितने बार disappointment, कितने बार heartbreak होता है. It is just that
मीटिंग द राइट पर्सन एंड होल्डिंग ऑन. कई बार लोग जब मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं मैंने भगवान से बात करना बंद कर दिया है एंड ऑल, आई से दैट बिलीव इन हिम, ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू. फेथ, सच में फेथ इतनी बड़ी चीज़ होती है, आप सब कुछ हिला सकती है. एंड दैट फेथ कम्स, आप अकेले नहीं जीत सकते. आई अंडरस्टैंड. एक माँ बनना आसान नहीं होता. आपकी जर्नी, आपके अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं वो को एक, इसीलिए हम कहते हैं एक फ़ीमेल ही फ़ीमेल को समझ सकती है, एक माँ ही माँ को समझ सकती है. सो दैट जर्नी वॉज मेरे साथ थी. एंड इसीलिए वो जर्नी जो मैंने जी है, मैं उसको आज अपने आप को बोलती हूँ कि मुझे एज अ मदर, एज युविका, सबसे पहले एज युविका जीना है. बिकॉज जो स्ट्रगल मैंने किया है, आई डोंट वांट टू सी दैट. सो आई वांट टू अप्रिशिएट एंड लिव एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ. कि अगर मैं अपने आप में जीऊँगी तो मैं एक अच्छी माँ भी बन सकती हूँ, एक अच्छी दोस्त, अच्छी बेटी. सो टफ़, बहुत टफ़ था. खुद से होता है, बहुत ज़रूरी है एक विश्वास करना. You could hear my heartbeat. My heart is just pounding. ऐसे धक 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 हो रहा है. I feel that I can feel the whole thing. यू कैन, आई थिंक सब छोड़ दे दो आप. मैं सब छोड़ चुकी थी, काम छोड़ दिया था, सब छोड़ दिया था कि बच्चा ही चाहिए अब तो. सिर्फ आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग. बस एक चीज़ रखती थी, डर नहीं रखती थी अंदर, एक विश्वास रखती थी. एंड दैट लिटरली हैपन्स. अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग हैं, अच्छा डॉक्टर है, बहुत चीज़ें बदलती हैं. कहते हैं ना कि एनर्जी बहुत मैटर करती हैं. आपके आसपास जो है वो रिफ्लेक्ट होता है. ये फैक्ट है. ज़िंदगी में उन लोगों को रखो जो आपको, सी पैसा सब कुछ नहीं होता है, एक नीयत होती है ना. अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो वो नीयत आपको रिटर्न भी देती है, आपको मिलता भी है. सो दैट डॉक्टर हैड दैट नीयत कि यहाँ से तुम माई बन के जाओगी, डोंट वरी. सो आई एम थैंकफुल टू हर. एंड इवन आफ्टर मी, बहुत आई ऑन माई पॉडकास्ट आई डिड 2-3 एपिसोड्स का सीरीज़, जहाँ पे सब लोगों ने देख के, आई थिंक दे वेंट टू हर एंड देन बहुत ब्लेसिंग दी है. इनफैक्ट अब तो लोग आके बोलते हैं हमें एक क्लीन जैसी बेबी चाहिए, वो कैसे करें. Really? Oh my God. But hope is something, if you are giving people, इससे बड़ी blessing और कुछ नहीं हो सकती. मतलब आप कई बार the world is so full of struggle. लोग घड़ी घड़ी होपलेस हो जाते हैं. फ्रॉम स्कूल टू लाइक अ न्यू फाउंड दिस थिंग कि हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ नहीं सिखाया जाता है. दैट देयर इज़ अ टाइम व्हेन वी जस्ट वांट अ करियर, बट देन देयर इज़ अ टाइम जहाँ माइंड में एक शिफ्ट होता है और आपको ही नहीं पता कि कब आप ये वाली वर्जन बन गई, कब आपको आपकी प्रायोरिटीज़ बदल गई. आपको ये चाहिए जो आपको जस्ट अ फ्यू ईयर्स बैक बिल्कुल मतलब आपके बहुत प्लान में ही नहीं था. प्लान नहीं था, बिल्कुल. तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि इस जनरेशन को भी थोड़ा थोड़ा समझा देना ज़रूरी है. दैट विथ टाइम वी चेंज. 100%. And how beautifully, Bapare, that is amazing. And this is such a beautiful moment to have this conversation because Mother's Day is also around the corner. Yeah. When it comes to motherhood, I feel some conversations just happen naturally. And honestly, sitting with you today, it feels like the most natural moment to bring this in. So the next part of the conversation is with Cetaphil baby. And I feel that it sits perfectly because we are talking about real parenting. Let's have some wonderful conversations around it because Cetaphil and baby is kind of synonymous. And I'm so happy that we are having this conversation at this time. आज की parenting I feel is very different, not how we were parented. Yeah. मतलब हमारी parenting थोड़ी अलग थी. बहुत अलग थी. हम तो पल गए हैं भाई, परिवारों में पल गए हैं, पता नहीं चला है. आज ताई जी के पास, ताऊ जी के पास, चाचा चाची, सब लोगों के पास घूम फिर के. बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट भाई. आई मीन आई फील अकेले तो बहुत मुश्किल होता है. So this is parenting की नई परंपरा. नई परंपरा. So what is your take on this? नई परंपरा कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा सजेशंस नहीं हैं. where you can take your life the way you want to go ahead with. बट कुछ जगह बहुत स्ट्रगल भी रहता है, जहाँ अपनों की ज़रूरत पड़ती है. अपने हम लोग क्या है, रिश्तेदारों में आना जाना, फैमिली बड़ी होती है तो पल गए हैं. अब जो है, अब क्या होता है कि अगर मुझे अपना बच्चा
मुझे काम करना है तो मुझे अब अपने बच्चे को नैनी के साथ अकेला छोड़ ही नहीं सकती हूँ. आई हैव टू गो टू माई मॉम्स हाउस एंड उसको वहाँ सेट करके फिर आती हूँ. फिर काम ख़त्म करके सब कुछ ख़त्म करने के बाद इन बिटवीन आई सी उसने क्या खाया क्या नहीं खाया, फिर वापस जाती हूँ उसको पिक करके, देन आई गो होम. दैट दिस इज़ माई ड्यूटी नाउ. बट सी पहले अवेयरनेस नहीं थी बहुत सारी चीज़ों की, पहले एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं थी समझने की. लेकिन वो देसी नुस्खे इतने एप्ट थे कि ज़रूरत पड़ती नहीं थी. घरेलू चीज़ों से ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती. गैस है तो हींग लगाओ, हो गया बच्चे को, छोटी छोटी चीज़ें. सो आई थिंक इनफैक्ट कुछ चीज़ें मैं अभी भी अप्लाई करती हूँ कि मुझे ज़्यादा मेडिसिन नहीं देनी अपने बच्चे को, तो नेचुरल तरीके से मैं कैसे हील करूँ. तो बहुत चीज़ें पुरानी हेल्पफुल भी हैं, लेकिन यार हर चीज़ का एक फ़ायदा और नुकसान दोनों ही है. मैं तो ये ऐसी भी नहीं कौन बोल सी चीज़ जो यू डिफ़र कि ये नहीं होनी चाहिए? ये नहीं होनी चाहिए. प्रेगनेंसी में जब आप प्रेग्नेंट होते हो, दैट टाइम टू मच ऑफ सजेशंस जो आते हैं लोगों के, सबके आते हैं. आई थिंक वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ज़माना अलग होता है, पर्सनैलिटी अलग होती है, लोग अलग होते हैं. वो ज़माना अलग था. लेकिन बेसिकली अगर हम जेनजीज़ को बोले तुम्हें ये नहीं करना तुम्हें ये करना चाहिए, दैट इज़ डिफरेंट. बट तरीके बदल गए हैं, सोच बदल गई है. आई थिंक विद टाइम वी शुड जस्ट गो अहेड. कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं पुरानी, जैसे नुस्खे बहुत काम आते हैं, लेकिन होता ना ऐसे मत करो, इस करवट सो, और ये बहुत सारी चीज़ें जो आती ना, ये वहाँ धूप में नहीं निकलना, ऐसे नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब सूरज निकल रहा है आज, क्या पता नहीं क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो आई थिंक थोड़ा स्लो डाउन, रिलैक्स्ड रहना चाहिए. आई थिंक मोर देन टू मच ऑफ रूल रेगुलेशन से अच्छा है कि आप इंजॉय करो अपनी जर्नी को. On Mother's Day, I want to know which version of Yuvika is better. आज खड़े होके the mom Yuvika और पहले वाली Yuvika. Oh, anytime mom, Yuvika. They have so much to give, so much to live, so much to learn. Anytime this one. Anytime. I prefer this one. As a mother, what do you think that you are doing differently and you are proud of? I'm not doing anything different. I'm just going basic. And that is more important. ना आजकल बहुत एडवांस होने के चक्कर में आप बेसिक चीज़ें भूल जाते हो, बेसिक जीना भूल जाते हो. That simplicity I want to continue. So not too much. वो too much के लिए तो हर चीज़ के लिए आजकल बच्चा घर से बाहर निकलेगा, वो हर चीज़ ही too much होने वाली है. So I just try to live that moment as a family. Basic simple life. Basic happiness. मी टाइम मिलता है या फिर वो इंस्टाग्राम में देख देख के ही खुश हो जाते हो? नो 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 नो, मी टाइम निकालते हैं. मी टाइम मिलता नहीं, आपको निकालना पड़ता है. एंड आई रियलाइज वन थिंग कि अगर आप दिल से किसी भी चीज़ को चाहते हो, काम चाहते हो, आप निकालते हैं टाइम काम के लिए. लड़ते हैं, झगड़ते हैं, स्लीप पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, किसी और चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बट निकालते हैं. सो येस, दैट फैमिली टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड आई मेक श्योर उस मोमेंट में कोई भी ना आए, ना फ़ोन आए, ना किसी की बातें आए. इनफैक्ट माई नैनी कम्स ना, आई टेल हर दिस इज़ आवर मोमेंट, डोंट डिस्टर्ब अस. मेनी टाइम इट हैपन्स, उसी टाइम नैनी कम्स, अब बेबी को ये देना है, मैंने कहा नहीं देना है बेबी को हमारे साथ टाइम स्पेंड करना है. सो आई एन्जॉय दैट, दैट नेचुरल थिंग. बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कडलिंग ईच अदर एंड ऑल दैट इज़ द मोमेंट. उसी के लिए पूरा दिन, पूरी एनर्जी फ्रेश रहती है, when we spend this time together. हाउ इज़ प्रिंस एज अ डैड? उनका रोल क्या है? He is पूरा स्पॉइल करने वाला है. आई कैन सी दैट. ही इज़ क्रेजी फॉर इक्लीन. नाम ही इक्लीन उसने रखा है. इमेजिन, आई सेड ही वॉज फाइनलाइजिंग द नेम. ही इज़ लाइक ये नाम है. लाइक इक्लीन प्यारा है. ही लाइक हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा. आई सेड वी कैन हैव सम मोर ऑप्शन. इज़ लाइक नहीं, अब इक्लीन ही होगा. आई वाज लाइक नो, एंड वी वर फाइटिंग ऑन दिस. नहीं, इज़ लाइक नो, इक्लीन ही होगा. सो ही इज़ वेरी इक्लीन इज़ अ वेरी पंजाबी नेम. Ecleen is Punjabi. हाँ. She is pure. Anyway, she's prince. Completely prince. She's पूरी गुंडा अंदर से, ये वो मतलब she's raw. वो खाना पीना everything, वो हर चीज़ में मुझे प्रिंस दिखती है वो. हैव यू एवर हैड अ मोमेंट जहाँ पे योर हस्बैंड सेड कि बैठ जाओ मैं हूँ ना, बैठ जाओ मैं हूँ ना. और मे बी
नो टू मेक इट मोर डिफरेंट thinking कभी the कभी whole- ऐसा होता है मुझे अगर बोलते भी है ना कि बैठ जाओ मैं हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे अच्छे से ये करना आएगा, तो मैं पहले कर लूँ उसके बाद बैठ जाती हूँ. सो आई एम For me, लिटिल when I'm कंट्रोल not फ्री. well, I'm not well that time. Otherwise, I don't think so. I don't think so. दोनों ने after becoming parents, दोनों के अंदर एक अलग सा growth आया है. एक kind of silence वाली understanding होती है ना, जहाँ I don't need to tell him few things and he doesn't need to tell me. And we feel happy for each other that how nicely he's becoming father. We appreciate that. And वो बोलते नहीं है, वो दिखता है. आंखों में दिखता है when he smiles and when I'm with Ecleen, he's looking at us, both of us, and प्रिंस के चेहरे पे स्माइल रहती है, आंखों में स्माइल हम दोनों को देख रहा है. So he enjoys that thing and I feel so nice that being a father, उसका जब चेहरा देखती हूँ ना प्रिंस का, एक that fatherhood in him is so beautiful. It's So different. how do you balance parenting as a team? Honestly speaking, balance मदर का रोल हमेशा से ज़्यादा रहता है. You can't deny. भले ही बेटियाँ पापा के पीछे पागल रहती हैं बट मदर इज़ समथिंग एक्चुअली. इसीलिए आई थिंक हम अपनी बॉडी में लेके आते हैं एक लाइफ को एंड पूरा टाइम देते हैं. वी मैनेज समहाउ वेन एवर ही इज़ होम. दिस वन रूल फ़ोन साइड में, बिकॉज मैंने क्लीन को आदत अभी तक नहीं डाली है फ़ोन की. शी लाइक्स टू इन्जॉय, थोड़ा शी इज़ एक्टिव किड, तो शी इज़ मोर ऑफ उसकी एक्टिविटी पसंद, दौड़ेगी, ये करेगी, वो करेगी. सो शी इज़ मोर ऑफ दैट. सो व्हेन वी आर टुगेदर, सो दैट्स व्हाट आई सेड कि नो फोन, नो नैनी, नो वन एल्स अराउंड अस, जस्ट थ्री ऑफ अस एंड स्पेंडिंग गुड क्वालिटी टाइम. एंड वेन एवर ही इज़ होम, सो दिस इज़ एवरी डे रूटीन. वॉट एवर टाइम इट इज़, he has to take out that particular time. वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है दोनों. He's like full on इको and she's like पापा and poems and countings and all that चलता रहता है इनका. Oh my God, dads and daughters, they have a Yeah. different bond. Different bond. If you ask her, you love papa, you love mama, she's like papa all the time. And whenever she's with him, she'll say mama and he's like no, she loves you more. उसको ये बहुत रहता है. And I'm like no, when you're not around, she's like papa. So yeah, ये चीज़, this we are in that phase of our life. No, absolutely. A child is a joint project. और बच्चे को दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. It वो is. समझ में आता है एक माँ को जब हम हमेशा होते अराउंड, बट उनकी आंखें पापा को भी ढूंढ रहे होते हैं. भले ही पापा मुँह के सामने आ जाए तो थोड़ी देर खेलने के बाद वो वापस माँ के पास, लेकिन जिस हिसाब से उनकी आंखें पापा को देख के एक अलग सी चमक, दैट भाग के पापा के पास जाना. गले लगना सो यू is something एब्सोल्युटली else. अंडरस्टैंड दैट अ चाइल्ड नीड्स द इक्वल ऑफ बोथ द पेरेंट्स. Yes, that is why I make sure. In fact, Prince only, he always on the phone calling, video call, and Ecleen से बात कराओ, भले 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए. Now she also started saying कि पापा से बात करनी है, कॉल पापा के ही गानों पे डांस करना है. For Ecleen, पापा is her superstar, everything. The hero. सब कुछ, yeah, the hero. Yeah, so she's in that zone कि उसको पापा ही चाहिए. गाना भी पापा का सुनना है बातें पापा की सुननी है. सो आई वी बोथ ऑफ अस वी लव दिस एंड सच अ ब्यूटिफुल थिंग. या लाइक आई यूज्ड टू फील, पहले हम बहुत इंडिविजुअल थे. we were working together, even we were married, but we were never together in that sense. जो मैं आज फील करती हूँ. Now everything is shared equally and it's so unsaid. You don't need to say. पहले क्या होता था, तुम नहीं कर रहे, तुम्हारा मेरा हमारा तो लाइफ यही चलता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग. नाउ इट्स लाइक एवरीथिंग इज अस. वी जस्ट थिंक टुगेदर, whatever, plan life together, whatever, everything is together now. There's nothing me मैं जो पहले बहुत था. So this is the beauty where आप समा जाते हो एक, that is called family. So beautiful. As a parent, as a mom, what do you आप कैसे decide करते हो कि आप अपने बच्चे पे क्या लगाओ? What goes in your child's skin? क्या लगाऊं? Her skin is very sensitive. Honestly speaking, I've tried a lot of things on her. Usually, majorly तो देसी नुस्खा ही होता है. Basically, oil I literally believe in. I do her massage and all that. And plus you have this very nice, I think you can trust this brand is since very long, Cetaphil.
So the safest. और ये इसको मैं भी इस्तेमाल करती हूँ. Absolutely. And when it comes to my skin also, we both are sensitive skin, so we are like, this is the safest and best brand, so I use that. बड़ों के लिए भी हम लोग हमेशा से पता होता था दैट यू हैव सेंसिटिव स्किन, सेटाफिल यूज़ कर लो. Yeah. आई ऑल्सो फील कि अगर कोई भी चीज़ जेंटल हो तो वो सेफ ही होता है. Yeah. एंड स्पेशली फॉर आवर बेबी स्किन. Exactly. That's why I also trust Cetaphil Baby. It kind of takes the stress away. Yeah, that is so true. Faith is there. हाँ, मतलब सालों से फेथ बनाया हुआ है और खरे भी है. हाँ, क्या बोलते हैं that हिंदी is में? true. मतलब हाँ, डटे भी हुए हाँ, कि मतलब इट नेवर गोज They रॉन्ग. proved actually कि we are here to stay. एक्चुअली एक यही ब्रांड है. आप यूजुअली कोई भी आप किसी के बारे में भी सोचो, आप नॉर्मली बात करते हो तो सबसे पहले जब बच्चे के ऊपर बात आती है तो दिस इज़ अ ब्रांड यू व्हेन यू नो थिंक अबाउट दिस, इट कम्स नेचुरली इन योर माइंड. तो उसी बात पे मदर्स डे पे ये आपके लिए है हैम्पर. How sweet. Thank you so much. When I saw this Cetaphil, I was like, okay, उसके साथ एक क्यूट सा एली भी है. we have so many. Now we are adding one more. आई एम श्योर एक्चुअली. और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक माँ को गिफ्ट करने के बारे में सोचते हैं दिमाग में कुछ आता नहीं है. हाँ. बट द सेफेस्ट एंड द बेस्ट गिफ्ट इज़ टू गिफ्ट समथिंग फॉर द बेबी Yeah, विच इज़ सेफ एंड Yeah. क्लीन एंड गुड फॉर द बेबी. माँ सबसे ज़्यादा खुश होती है. 100%. Seriously. So I somehow feel that in today's world, parenting is very overwhelming. So in such a situation, how do you get some time for yourself? It's very tough. It's not easy. And my time is, I take out. I have to. Otherwise, I can't. My time is in the morning when I am gymming. My time is something when I am taking out time and thinking for my skin care कि चलो कुछ कर लेती हूँ अपने लिए. एक पैक लगा लिया. That is for me. It's like a big change. In between, I keep on doing multiple work though. But the small moment basically when spending time with Prince and Nicklin कि चलो सब छोड़ देते हैं, काम को भी ब्रेक देते हैं, just spending that time. So I enjoy that. तो जितना भी टाइम मिलता है, so I just feel it's me. And the last and the first thing is bathroom, where I am myself. It's like it's with everyone, I believe. Let the child grow a little more. Then she's still like this, mama, mama, when are you coming out, mama, mama. I'm like, wait, beta. And Prince feels so happy. Oh my God, she's पीछे है, वो मेरे पास कम आ रही है. उनको बेटा, I'll tell you, wait. So bathroom time feels like a social work because थोड़े बड़े हो जाने के बाद they are just there. Yeah. Okay. I know you have two, man. This is too much of work. Two मतलब double of work of life. Don't you think so? डबल ऑफ वर्क. बट ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दे हैव ईच अदर्स कंपनी. मुझे उनको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद ही अपने आप को एंटरटेन कर लेते हैं. Behind me is like one more baby. ये मेरे शो में भारती बोल के गई, उसके बाद उसका दूसरा बेबी हो गया. Oh really? तो नहीं, अच्छा मैं नहीं बोल रही हूँ. Not now, अभी तो she's so small. देखो मैं सोसाइटी की आंटी जैसे बोल रही हूँ, जल्दी कर लो. जल्दी सबको मतलब साथ साथ बड़े हो जाएंगे. नहीं, आपने मुझे सेटाफिल गिफ्ट कर दिया ना, तो आप मुझे एडवांस में बोल रहे हैं कि जल्दी कर लो, मैं इसलिए आपको गिफ्ट कर रही हूँ. नहीं, ये एकदम न्यूबॉर्न से लेके थोड़े और बड़े तक भी यूज़ कर सकते बड़े क्या, हैं. मैं खुद यूज़ करती हूँ. जस्ट इमेजिन फॉर माई सेंसिटिव स्किन. इमेजिन. Absolutely, it is such a trustworthy brand. That is why. So true. So while you can keep it aside, ये आपको लेके जाना है. I want to wish you happy Mother's Day in advance. You too, and all the mothers out there. Absolutely. Too much of love for you. Too much love. Now we are mothers, so we are spreading love. Now let's move on to something more fun, more playful. जैसे कि प्रिंस ने ऐसा क्या किया as a dad which has kind of surprised you? तो सोच रही है. Thinking. I think when he was changing Eclean's diaper with full of potty. So I was like, not bad. We were shooting in Dubai recently before the show 50. And I was shooting. So he was, even Prince was there.
he was handling Eclean. So he was making sure that उसने poop किया था कार में. It's like baby बहुत बदबू आ रही है. मैंने कहा संभालो. I have an actress today. Don't talk to me like baby. Don't tell me. मैंने कहा it's your duty. But I was kidding. I was like of course मुझे ही करना है. But no, he handled so nicely. Like stopped the car, then washroom ढूंढा, उसको लेके गया. Then how nicely he managed everything. So for me, I was like surprised and happy. कि चलो. Then full day I was shooting and he was handling it clean. Prince as a husband or as a father? It's very tough to say, but of course, he's a father. He's a very good father. Very good partner also, but I give extra number to the fatherhood. Yeah. एब्सोल्युटली आई समहाउ फील दैट ये क्वेश्चन जब मुझे भी करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमने हमारे पार्टनर को ऐसे ग्रो होते हुए देखा इन द रिलेशनशिप ऑल्सो कि जब उनको एज अ फादर देखते हैं, उनको पूरा पॉइंट अंदर से ऐसे दे देते हैं दैट ये रोल भी वो कितने अच्छे से निभा रहे हैं. Like it feels good from inside to see them as fathers because our husbands have also grown up in front of us. That is why we appreciate that, seeing them कि how beautifully. अभी तक तो हम अपनी बात करते थे. Now it's like more of a giving when you see that side ना कि सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है. और जब आप देख रहे होते हो कि अपने बच्चे के लिए whatever he is thinking, whatever he is planning and the way he is expressing, तो सामने देख के नज़र आता है कि कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग यार. एंड वी डिस्कस दैट, मी एंड प्रिंस लिटरली डिस्कस कि कल तक हम ऐसे होते थे, दोनों बच्चे होते थे एंड वी लाइक फाइटिंग एंड टॉकिंग एंड रनिंग अराउंड ला 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 सब चीज़ें. एंड ऑल ऑफ अ सडन नाउ वी हैव दिस ब्यूटीफुल लाइफ एंड या अच्छा लगता है देख के. वी अप्रिशिएट ईच अदर्स ग्रोथ कि कहाँ से कहाँ, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे पहले झगड़े होते थे, अब समझ ही नहीं आता है कि टचवुड देयर इज़ नो झगड़ा एट ऑल. Touchwood. या And कभी पोस्ट बेबी हैव यू एवर फेल्ट दैट यार आज नहीं? No, never. I think till my last breath, I will be super active for her. I don't know, it comes naturally in me. एक्चुअली मेरे काइंड ऑफ रिएक्शन आ रहा है जब लोग पूछते हैं कि कैसे कर लेती हो, कैसे करते हो, टायर्ड नहीं हो जाते हो. आई सम फील दैट नो यार, आई जस्ट वांटेड दिस सो मच. मैं इसको कैसे, मतलब मैं थक ही नहीं सकती, मुझे फीलिंग ही नहीं आती है थकने वाली. मैं मतलब कितनी भी टायर्ड हो जाऊँ मैं, मतलब मरने वाली हालत हो जाएगी, मैं तब भी उठ के आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई, आई डू इट फॉर प्रिंस. एंड ये तो हमारी जान है हम दोनों की. सो व्हाई नॉट Eclean? दिस इज आवर लाइफ. So true, so true. What's a ridiculous piece of advice, parenting advice जो आपको मिला हो? ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खड़े हो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो. बहुत सारी चीज़ें बेसिकली, तो डोंट रिमेंबर बेसिकली. बहुत सारी चीज़ें, मतलब आज ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसे इस डायरेक्शन में सो, ये करो वो करो. बट थैंकफुली माई फैमिली इज़ प्रिटी रिलैक्स. बट होता है ना बाहर से सजेशंस जो आते हैं, तो दैट आई डोंट लिटरली लिसन टू. बेसिकली अगर आप खुश हो ना, हर चीज़ अच्छी रहती है और सब बहुत अच्छे से जाती है. बट वन थिंग माई डॉक्टर टोल्ड मी, थोड़ा साइलेंट रहना जब तक मैं ना बोलूँ. बट बहुत मुश्किल था हम दोनों के लिए छिपा के रखना कि नहीं. बट इन दैट ऑल्सो आई वॉज डूइंग माई स्टफ. अटेंडिंग वेडिंग, आरती की वेडिंग अटेंड की एंड अपनी चीज़ें कर रही हूँ. I guess we met at Aarti's wedding also. हाँ, सब उस pregnant थोड़ी है. देर के लिए हाँ, थी हाँ. मैं, लेकिन मेरा भी वो ब्लिंक एंड मिस हो जाता हाँ. था बिकॉज मेरे Now बच्चे I can बहुत छोटे थे. understand you. When I was in touch with you, मतलब whenever I used to call you. I'd come for your गोद भराई ऑल्सो. मैं आई थोड़ी देर के लिए, फिर मुझे चुपचाप निकल जाना left, पड़ा. हाँ. मुझे लगा कि there's always this thing waiting because we are always trying to extend ourselves into social commitment. नहीं तो ऐसा होगा यार, लोग भी भूल जाएंगे. 100. नहीं, it is very important. See, I can't imagine myself. I started going out now, जो मैं पहले नहीं जाती थी. Imagine having such a busy life. अब तो मतलब ऐसे है कि एक कदम यहाँ से मैं निकलूँगी, my life will start something else. यहाँ का भूल जाऊँगी, I'm in other moment, of my life. It's like you can understand that. So यही अभी है. तो शुरू होगी बर्थडे पार्टीज के ढेर. अरे बाप रे. इतने बर्थडे पार्टीज की
मतलब याद रखते रखते एक दिन ऐसा हुआ बर्थडे पार्टी नहीं था, अगले संडे था। इस संडे को मैं शूट पे थी और मेरे दिमाग में है कि बर्थडे पार्टी, मेरे बच्चे रेडी होके बर्थडे पार्टी के लिए निकल गए। बाद में मुझे रियलाइज हुआ आज तो है ही नहीं पार्टी, बिकॉज आई कॉल्ड अप द मॉम टू आस्क कि ये मैं काफी कहाँ कर पे सकती हूँ, पहुँचना है। ऑन अ रेगुलर बेसिस। बर्थडे तवे आप बच्चे तैयार करके भेज दिए। आई कैन डू दिस। फिर मैंने सोचा मेरे बच्चे यार सुबह सुबह रेडी होके निकले, क्या उनको वापस घर लेके कैसे आऊँ। उन लोगों को प्ले एरिया खुला भी नहीं था तभी तक, खुलवा के मैंने बोला मैं देवीना बनर्जी बोल रही हूँ, ताकि वो मेरे लिए खोल दे। और बच्चों को घुसा के खिलवाया, जब से पूरे प्ले एरिया में मेरे ही 2 बच्चे घूम रहे थे। God, देख रहे हैं ना आप, ये लाइफ होती है। पता नहीं किस किस लेवल पे माइंड चलता है। This is clearly that mom's mind. yeah, absolutely, the mom brain working overtime, but trying to patch things up also. Something to learn from in this question. अगर 22-year-old युविका को आज की युविका को हम दिखाते तो वो क्या बोलती? वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ स्माइल कर रही होती है और दिखाती मुझे सब पता है और कुछ नहीं पता होता। This was me. I used to show as if I know everything. मतलब you mean to say उसके दिमाग में तभी भी कुछ नहीं घुसता? कुछ नहीं घुसता। I was so naive, but I used to show as if कि मुझे सब पता है, कि I have knowledge of this and this. I'll not say, I'll just smile and show my confident face की that's it. But अंदर से कुछ नहीं पता। I was really naive. You waited to become a mother. Did that thing change anything in you? मतलब अगर आप चाहते कि मुझे माँ बनना है and it would have happened, या नहीं चाहते हुए भी हो जाता, तो क्या मदरहुड आपके लिए तब डिफरेंट होती? ऊपर वाला चाहता था कि मैं इस स्ट्रगल से गुजरूं और इसकी अहमियत रखूं अपनी ज़िंदगी में, ताकि मेरे अंदर भी बदलाव आ पाए। सबकी अपनी जर्नी होती है, किसी को इजी मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। बट शायद मुझे इजी नहीं मिला, कि चाहता था ऊपर वाला कि मैं अपने अंदर चेंज लाऊं। आई नीडेड दैट चेंज, एंड वो शायद वैसे नहीं आता। शायद मैं वैल्यू नहीं करती जो आज करती हूँ। शायद इतनी इम्पोर्टेंस मुझे लाइफ की तब नहीं थी जो आज है। आप कई बार ना, आप ज़िंदगी में काम में कुछ चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हो, वो ज़िंदगी नहीं होती, बट आपको लगता है दैट इज़ लाइफ। बट नाउ आई थिंक गॉड हैज़ गिवन मी दैट स्ट्रगल। आई रियलाइज़ कि वो मुझे स्ट्रगल मिला है कि मुझे कुछ सीखना है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट कि मैंने वो जर्नी सीखी। मैं बहुत लोगों की एक बेसिकली हेल्प बन पाई, जो मेरी जैसी ज़िंदगी जी रही हैं और जो मेरी तरह जिन्होंने स्ट्रगल किया है, उनके लिए होप बन पाई। उनकी भी जर्नी उनसे रिलेट कर पाई हूँ। एंड आई फील सो नाइस जब लोग मुझे आके बोलते हैं कि वी फील द सेम, जो आपके साथ लाइफ में हुआ है, आपने जो देखा है, IVF जर्नी एंड व्हाटएवर स्ट्रगल। सो आई फील नाइस। आई थिंक इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि अब मैं खुल के बात करूं, जो मैंने जिया है, दूसरों को एहसास कराऊं कि वो भी और मैं भी, हम सेम हैं, कुछ अलग नहीं है। एंड रादर देन कि अपने आप अपनी चीज़ें रखूं, आई जस्ट वांट टू गिव इट ऑल। चाहे वो मेरा स्ट्रगल हो, चाहे मेरा दुख हो, चाहे मेरी खुशी हो, आई वांट टू सेलिब्रेट एवरीथिंग एंड शेयर विद एवरीवन, बिकॉज सब एक ही लाइफ जी रहे हैं, एंड दिस इज़ लाइफ। एंड एवरी मोमेंट आई वांट टू गिव, जितना होगा, जब तक होगा। सो ये सीखा है मैंने अपने स्ट्रगल से। आज भी स्ट्रगल है, बट उस स्ट्रगल को आई डोंट सी एज अ स्ट्रगल, आई सी एज अ लेसन, कि ये मेरे लिए आया है कुछ अलग। आज मुझे स्ट्रगल लग रहा है, लेकिन दिस इज़ समथिंग फॉर गुड इन माई लाइफ। तो इसलिए ना मदरहुड मुझे स्ट्रगल लगता है। यस, नींद पूरी नहीं होती है, आज भी ब्रेन ऐसा लगता है कि शायद चल रहा है, सोते दफ़े भी काम कर रहा है ब्रेन। समटाइम्स ऐसा लगता है कि ब्रेन फट जाएगा, बट आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ, कि आप मूव कर रहे हो। आई थिंक गॉड हैज़ गिवन अस लाइफ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन, आई अप्रिशिएट दैट रादर देन क्रिविंग। एंड आई कांट इमेजिन, पहले मुझे एक काम ख़त्म करने में टाइम लगता था, अब मैं 10 चीज़ें संभालती हूँ। मैं कैसे करती हूँ, आई हैव नो आइडिया। आई जस्ट से थैंक यू गॉड ये लाइफ देने के लिए, बट बनाए रखो ऐसे फॉर आवर ओन पीपल। It's like sitting and listening to yourself, your own thought. It's so beautiful, so reassuring, and so perfectly beautiful. What do you want your daughter to know about you?
not as a mom, as a human being, as Yuvika? When I was pregnant, I used to tell her one thing: you are a very strong girl, very kind hearted, but I don't want you to be emotionally dependent. I want to be, you know, be yourself and don't look for emotions outside. You are complete in you. मेरे लिए तुम झांसी की रानी बनना and be a fighter, be a good human being. So I think from me, I don't want to see her emotional. I'm very emotional, and I don't want I it is very important to have emotions, but not too much. So वो क्वेश्चन मैं एडिट करना चाहूँगी अपने से, एंड नहीं चाहूँगी कि वो मेरे जितनी इमोशनल बने. आई वॉन्ट हर टू बी प्रैक्टिकल एंड गुड काइंड हार्टेड पर्सन, बट नॉट दिस इमोशनल. देन हाफ ऑफ द थिंग शी हैज़ टू, शी विल बी लाइक मैं कहाँ जा रही हूँ. मतलब जो मैंने लाइफ में मिस किया है बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज ऑफ माई नेचर आई वॉज टू नाइव, डिडंट हैव गाइडेंस, टू इमोशनल. तो वो सारी चीज़ें मैं निकालना, ये सिर्फ दिस पार्ट आई वॉन्ट टू रिमूव इफ़ शी इज़ लाइक दिस. बट आई सी हर, लेट्स सी, आई कांट सी राइट नाउ. तो बहुत छोटी है टू टेल दिस. शी इज जस्ट ग्रोइंग अप, देख रही है, हमें देख रही है, एंड वी बोथ आर इमोशनल, मी एंड प्रिंस, ऑन एक्सट्रीम लेवल. तो वो चीज़ मैं निकालना चाहूँगी, नहीं चाहती वो क्लीन के अंदर आए. एक्सट्रीमली इमोशनल. I somehow feel that this conversation was also destined to happen. Yes. Because I just saw a reflection of me. Maybe जिस तरीके से मुझे लग रहा है, हो सकता है कई सारी माओ को ऐसा लगे कि अभी आर सीइंग अ रिफ्लेक्शन, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू हैपन. और पूरे कॉन्वर्सेशन में बैठ के युविका इतनी रोई, इतनी इमोशनल थी. देखिए वो बहुत इमोशनल है. तो ऑन दैट नोट, आई थिंक ऑन मदर्स डे we had this beautiful conversation, and this friendship is for keeps. Yes. मतलब दूर दूर वाली एक फ्रेंडशिप थी, and हमेशा लगता था that I know you, we know of each other, Yeah. because we were always around, we have met, we have bumped into each other. But आज ऐसा लग रहा है जैसे बैठ के हम लोगों ने we had a heart to heart conversation, जैसे हमने and खुद से बातें की. खुद से बातें की, but so beautiful, so beautiful. I'm glad, I'm so happy, as if, you know, honestly speaking, रिफ्लेक्शन ही है बेसिकली. माँ बन गए हैं एंड ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एंड लिव आवर लाइफ ऑल्सो. तो हर तरह का बेसिकली हम वो मैनेजर हैं ऊपर वाले के जो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन आवर ओन स्पेस, अपने पेस के साथ. Motherhood has actually brought the limitlessness in us. That is true and so beautiful. Thank you so much for joining this conversation. We are ending it here. And all of you can see this conversation, listen to this conversation on YouTube and Spotify and all other major audio platforms. तो देखना ना भूलिए. और अगर आपने देखा, आपका कौन सा चीज़, क्या आपके दिमाग में आया, कौन सा चीज़ दिल को छुआ, प्लीज़ लिख के भेजिए, बिकॉज वी वुड लव टू रीड ऑल दोज. एंड yeah, Thank you so much for having me.